السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما کثیرا نافعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ تختی نمبر 1 سے متعلقہ ہم نے چند باتیں بھی سمجھیں اور کچھ مخارج بھی پڑھے۔ اب چند مخارج ایسے ہیں جن میں دانتوں اور داڑوں کا دخل ہے، یعنی دانتوں، داڑوں اور زبان سے متعلقہ ہم سمجھیں گے تو پھر وہ مخارج سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم زبان کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں اور دانتوں اور داڑوں سے متعلق بھی سمجھ لیتے ہیں، تاکہ باقی چند حروف جن میں دانتوں، داڑوں اور زبان کا دخل ہے وہ مخارج سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ تو زبان کا نقشہ آپ دیکھیں گے کہ زبان کی جو نوک ہے، اردو میں تو اسے زبان کی نوک بولیں گے، لیکن عربی میں اسے رأس اللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور رأس سر کو کہتے ہیں۔ رأس اللسان زبان کا سر، یعنی زبان کی نوک۔ یہ بالکل سامنے والے دانتوں کے ساتھ جو زبان کا حصہ لگتا ہے وہ زبان کی نوک کہلاتی ہے، اور سامنے والے دانتوں کے دونوں طرف جو دانت ہیں، دانتوں کے ساتھ زبان کا جو حصہ لگتا ہے اسے زبان کا کنارہ کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اسے طرف اللسان کہیں گے۔ طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور لسان کا معنی ہے زبان۔ طرف اللسان زبان کا کنارہ۔ اور زبان کا بالکل جو درمیانی حصہ ہے، جہاں سے ہم نے جیم، شین، یا کا مخرج پڑھا، جو کہ زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، تالو کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے بالمقابل جو زبان کا حصہ ہے اسے زبان کا درمیان اردو میں کہیں گے، اور عربی میں درمیان کو شجر کہتے ہیں، جیم کے سکون کے ساتھ، جیم کے جزم کے ساتھ۔ اور لسان زبان کو کہتے ہیں، تو شجر اللسان کا معنی ہوگا زبان کا درمیان۔ تو سامنے والے جو 2 بڑے دانت ہیں اور اسی کے بالمقابل نچلے جو دانت ہیں، ان دانتوں کے ساتھ زبان کا جو حصہ لگے گا اسے رأس اللسان زبان کی نوک کہیں گے، اور بقیہ جو دانت ہیں دونوں سائڈوں پہ، ان کے ساتھ جو زبان کا حصہ لگے گا اسے طرف اللسان یعنی زبان کا کنارہ کہیں گے، اور زبان کا بالکل درمیانی جو حصہ ہے اسے شجر اللسان یعنی زبان کا درمیان کہیں گے، اور دونوں سائڈوں کی داڑوں کے ساتھ جو زبان کا حصہ لگتا ہے اسے حافۃ اللسان یعنی زبان کی کروٹ کہیں گے، زبان کا سائڈ والا حصہ۔ حافہ اسے عربی میں کہتے ہیں، حافۃ اللسان زبان کی کروٹ۔ اور ایک ہے زبان کا بالکل آخری حصہ جو قاف اور کاف کے مخرج میں ہم نے پڑھا، جسے زبان کی جڑ بولتے ہیں اردو میں، اور اقص اللسان زبان کی جڑ یعنی زبان کا آخری حصہ۔ تو پتہ چلا زبان کے کتنے حصے ہو گئے؟ نمبر 1 رأس اللسان زبان کی نوک، نمبر 2 طرف اللسان زبان کا کنارہ،
नंबर 3 हाफतुल लिसान, ज़ुबान की करवट। नंबर 4 शजरुल लिसान, ज़ुबान का दरमियान। और नंबर 5 अक़सुल लिसान, ज़ुबान की जड़। तो 5 हिस्से हैं ज़ुबान के। इसी तरीक़े के साथ हमने इन्हीं नामों के साथ याद रखना है, ताकि जब हम मखारिज पढ़ेंगे, जैसे हम जीन, जीम, शीन, या के मखरज में हम बोल सकते हैं कि शजरुल लिसान, जीम शीन या कहाँ से अदा होता है? शजरुल लिसान, ज़ुबान के दरमियान, बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। इसी तरह क़ाफ और काफ के मखरज में हम बोलेंगे अक़सुल लिसान, यानी ज़ुबान की जड़। कौवे के करीब नरम तालु से लगे तो क़ाफ, सख्त तालु से लगे तो काफ। तो इसलिए ज़ुबान के नाम, ज़ुबान के हिस्सों के नाम याद करना भी ज़रूरी है। तो ये थे ज़ुबान के हिस्से और उनके नाम। अब हम समझते हैं दांतों से मुताल्लिक़, दांतों और दाढ़ों। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि दांत और दाढ़ें जो हैं वो कुल 32 हैं, जिनमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। 20 दाढ़ें हैं और 12 दांत हैं। अब दांतों के 3 नाम हैं, दांतों की 3 किस्में हैं, 3 नाम हैं। इसी तरह दाढ़ों की भी 3 किस्में और उनके 3 नाम हैं। सामने वाले जो ऊपर बड़े 2 दांत हैं उनको, और निचले बिलमुकाबिल बिल्कुल 2 बड़े दांतों के बराबर जो निचले दांत हैं, इन 4 दांतों को सनाया कहते हैं। इन 4 दांतों का क्या नाम है? सनाया। अब ऊपर वाले जो बड़े जो 2 दांत हैं उनको सनाया उलिया कहेंगे। उलिया का मतलब है बुलंद, ऊपर वाले। तो सनाया उलिया, ऊपर वाले 2 दांत। और जो निचले उसी के बराबर जो 2 दांत हैं उनको सनाया सुफला बोलेंगे। सुफला का मतलब होता है निचले। तो 2 निचले दांत, सामने वाले 2 निचले दांत। इन्हीं ऊपर वाले 2 दांतों के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी ऊपर एक एक दांत है। और इसी तरह नीचे वाले जो सनाया उलिया के सामने वाले 7 बिलमुकाबिल जो दांत हैं उनके भी दाएं बाएं, यानी ऊपर भी दाएं और बाएं एक एक दांत और नीचे भी दाएं और बाएं एक एक दांत। ये 4 दांत जो हैं सनाया उलिया और सनाया सुफला की दोनों साइडों पे दाएं और बाएं, ऊपर भी और नीचे भी, इन 4 दांतों को रुबाई बोलते हैं। इसी तरह रुबाई के ऊपर भी दाएं तरफ और बाएं तरफ और नीचे भी दाएं तरफ और बाएं तरफ जो 4 दांत हैं ये अनयाब कहलाते हैं। तो 4 दांत सनाया, 4 दांत रुबाई और 4 दांत हुए अनयाब, कुल 12 दांत हो गए। यानी 6 दांत ऊपर हैं और 6 दांत नीचे हैं। सामने वाले 2 दांत ऊपर और उनके दाएं बाएं 2 दांत, और वो रुबाई कहलाए। और फिर उन्हीं के साथ 2 दाएं बाएं, वो अनयाब कहलाए। और इसी तरह 6 दांत नीचे भी। ये कुल 12 दांत हो गए। तो दांतों की तफसील हमने समझी कि दांत 12 हैं, सनाया, रुबाई, अनयाब। 4 सनाया हैं, 4 रुबाई हैं और 4 अनयाब हैं। इसी तरह दाढ़ें जो हैं वो 20 हैं। जहाँ तक हमने अनयाब पढ़ा, यानी सनाया के साथ रुबाई ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 दांत,
इसी तरह रुबाई के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं 6 दांत 4 दांत अनायाब के थे। इसके बाद दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अनायाब के साथ ऊपर भी एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ और नीचे भी एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, जो 4 दाढ़ें हैं, इन दाढ़ों का नाम है ज़वाहिक। और इन्हीं ज़वाहिक दाढ़ों के साथ ऊपर दाएं तरफ भी 3 दाढ़ें और बाएं तरफ भी 3 दाढ़ें, और इसी तरह नीचे भी ज़वाहिक जो दाढ़ें हैं उनकी दाएं तरफ भी 3 दाढ़ें और बाएं तरफ भी 3 दाढ़ें, ये तवाहिन हैं। और इसी तरह तवाहिन के साथ जो आखिर में दाढ़ें हैं, ऊपर भी दाएं तरफ और बाएं तरफ और नीचे भी दाएं तरफ और बाएं तरफ 4 दाढ़ें, ये नवाजिज़ कहलाती हैं। यानी ज़वाहिक जो दाढ़ें हैं वो 4 हैं, तवाहिन हैं वो 12 हैं और नवाजिज़ जो हैं वो 4 हैं। तो पता चला कि ज़वाहिक 4, तवाहिन 12, नवाजिज़ 4, कुल दाढ़ें हो गई 20। 12 दांत और 20 दाढ़ें, ये मिलकर के कुल 32 हो गए। अब सनाया का मतलब है 2-2 इकट्ठे आपस में मिले हुए। अब देखेंगे कि रुबाई भी इकट्ठे नहीं हैं, एक सनाया की एक तरफ है और एक दूसरी तरफ। नीचे भी सनाया की एक साइड पे एक रुबाई है और दूसरी साइड पे दूसरी साइड पे भी एक रुबाई है। लेकिन सनाया ऊपर भी आप देख रहे हैं कि 2 बड़े दांत जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। इसी तरह जो है, इसी के बिलमुकाबिल निचले जो सनाया 2 दांत हैं, जिन्हें सनाया सुफला बोलते हैं, वो भी दोनों दांत आपस में मिले हुए इकट्ठे हैं। तो सनाया सुफला और सनाया उलिया, तो सनाया का मतलब है 2-2 इकट्ठे आपस में मिले हुए। रुबाई का मतलब है कुचली वाले दांत, और अनाब का मतलब है नोकदार दांत, और ज़वाहिक का मतलब है हंसने वाली दाढ़ें, यानी जो हंसने में नज़र आ रही होती हैं। जब हंसते हैं तो वो दांतों के करीब वाली दाढ़ें जो नज़र आ रही होती हैं उनको ज़वाहिक कहते हैं। और तवाहिन का मतलब है पीसने वाली, यानी खाते हुए जो चीज़ों को पीसती हैं, इन दाढ़ों को, यानी दाएं बाएं ऊपर भी 3-3 दाढ़ें और नीचे भी 3-3 दाढ़ें, ये कुल 12 दाढ़ें जो हैं ये तवाहिन कहलाती हैं, जिनसे हम चीज़ खाते हैं, पीसते हैं। और नवाजिज़ जिनको हम अकल दाढ़ कहते हैं, दोनों तरफ ऊपर भी एक दाढ़ और नीचे भी एक दाढ़, इनको नवाजिज़ कहते हैं। तो बहरहाल ये था सारा दांतों और दाढ़ों से मुताल्लिका तफसील थी, उनके नाम थे, उनके माना थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नक्शे से, ज़ुबान के नक्शे से और दांतों और दाढ़ों के नक्शे से भी आपको अच्छी तरह ये बातें समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हामी और नासिर हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।